नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। Students, today our session or topic is hierarchy, disadvantage and suggestions. Disadvantage of hierarchy system. Let's see. Following are some of the losses from the hierarchy system. First is delay in performance of works. In this system, every order, action, letter, and message, etc., has to pass through each level. At every stage, it takes some time for the concerned officer to take action so that there is unnecessary delay in the whole process. Second, red tapeism. Hierarchy system also encourages red tape and bureaucracy. At each level, the file remains closed or improper interruptions are sometimes made in the process or in the work. Third disadvantage is distance between officers. One of the drawbacks of the hierarchy system is that there remains a sufficient distance between the higher officer and lower or subordinates officers. Thus, there is a possibility of rigidity in administration due to lack of direct relations. And next is extravagancy. In a gradual process, each department is divided into several levels. There is wastage of money by having multiple parts of a department. In addition, the Supreme Office appoints committees from this time to time to inspect these various levels of the department so that there is wastage of money. Suggestions to remove demerits. The main drawbacks of hierarchy system has been considered to be excessive delay, and the following suggestions for its solution are. Let's see one by one. First is mutual arrangement among the office bearers. In order to remove the defects of the delay, various officers of the organization should compromise with each other and allow the employees to meet each other. This will increase efficiency of work. For this is necessary that the lower officer be relieved. Second is bridging between authority. In order to remove the flaw inherent in the hierarchy system, Fayol introduced a bridge system named gang plan, which means gang jumping. This bridge can be of two types, horizontal and vertical. This bridge system of Fayol can be applied only under certain special circumstances. In spite of certain faults, the benefits or importance of Path Sopan method cannot be denied. It is necessary to implement this
for the success of the organization. Under normal circumstances, it would be appropriate to adopt the footsteps system, but in some special circumstances, it would be appropriate to implement this method by building bridges. This session prepared digital version 2.0 Jyoti Women's University, Jaipur. If you have any query, please mention box. I will sort out. चलिए अब इसके बाद में कुछ हिंदी में देखते हैं इस टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है, सेशन है, वो है पद सोपान प्रणाली की हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्की सिस्टम। पद सोपान प्रणाली से होने वाली हानियाँ क्या क्या है, हम एक एक पॉइंट के हिसाब से देखेंगे। पहला पॉइंट है कार्य संपन्नता में विफल होना, डिले इन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। इस प्रणाली में प्रत्येक आदेश, कार्यवाही, पत्र और संदेश आदि को प्रत्येक स्तर से गुजरना होता है। प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारी को कार्यवाही करने से कुछ न कुछ समय जरूर लगता है, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया में देरी होती है। दूसरा है लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। पद सोपान प्रणाली से लाल फीताशाही और नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक स्तर पर फाइल बंद पड़ी रहती हैं या कई बार प्रक्रिया में या कार्य को आगे बढ़ाने में अनुचित व्यवधान डाला जाता है। तीसरा है पदाधिकारियों के मध्य दूरी होना, डिस्टेंस बिटवीन ऑफिसर्स। पद सोपान प्रणाली का एक ये दोष भी है कि सर्वोच्च अधिकारी मीन्स हायर अथॉरिटी तथा निम्नतम अधिकारी के बीच में पर्याप्त दूरी बनी रहती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष संबंधों का अभाव होने के कारण प्रशासन में ढिलाई की संभावना बनी रहती है। चौथा है अपव्ययता, ठीक है, एक्सट्रेवेंसी। क्रमिक प्रक्रिया में प्रत्येक विभाग को कई स्तरों में विभाजित किया जाता है। एक विभाग के कई भाग होने से धन का व्यय होता है। इसके अलावा सर्वोच्च अधिकारी विभाग के इन विभिन्न स्तरों के निरीक्षण के लिए समय समय पर समितियां नियुक्त करता है, जिससे कि धन भी अधिक खर्च होता है। अब देखिए जो दोष हैं, कमियां, इनको दूर करने के क्या सुझाव है। सजेशंस टू रिमूव डिमेरिट्स। पद सोपान व्यवस्था का जो दोष है वो सबसे बड़ा है विलम्ब होना कार्यों में। इसके समाधान के लिए कुछ सुझाव हैं, जिसमें पहला है पदाधिकारियों का पारस्परिक समझौता, म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द ऑफिसर बियरर्स। विलम्ब के दोषों को दूर करने के लिए संगठन के विभिन्न अधिकारी एक दूसरे से समझौता कर लें और कर्मचारियों को परस्पर मिलने की अनुमति प्रदान कर दें। इससे कार्य करने की कुशलता और क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके लिए निम्नतर अधिकारियों का विश्वसनीय होना जरूरी है। तो आपसी समन्वय से भी काम जल्दी से हो सकता है। और दूसरा है सत्ता के मध्य पुल का निर्माण करके, तो ब्रिजिंग बिटवीन अथॉरिटी। पद सोपान व्यवस्था में निहित दोषों को दूर करने के लिए फेयोल ने एक पुल व्यवस्था प्रस्तुत की, जिसे गैंग प्लान का नाम दिया गया है, और इसका अर्थ है स्तरों को लांघना, लेवल जंपिंग। यह पुल दो प्रकार का होता है, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल और लंबवत वर्टिकल। फेयोल की यह पुल रचना, पुल व्यवस्था किसी विशेष परिस्थितियों में लागू हो सकती है। कुछ दोषों के बावजूद पद सोपान पद्धति के लाभ और महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। संगठन की सफलता के लिए इसे लागू करना जरूरी है। तो आज का सेशन हमने देखा कि जो पद सोपान है उसके क्या क्या दोष हैं और उन दोषों को दूर करने के क्या उपाय हैं। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।